Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your chemistry teacher Ghazanfar Ali Qadri from Multan Public School and College. Today we will discuss our second year chemistry, lecture number 3. Last time we have discussed some basic features of organic chemistry, and before that we have discussed modern definition or modern concepts of organic chemistry. Today we have to discuss our topic 7.3, that is importance of organic chemistry. So this is the third lecture from chapter number 7. Importance of organic chemistry. What is the applications or what is the importance of organic chemistry? Especially organic chemistry is very important in our daily life. I used to say in my class, and I think so, organic chemistry, without organic chemistry life is not possible. As our first application or first importance, that is almost all the chemical reactions taking place in living organisms, even in our bodies, are organic in nature. They involve organic molecules such as enzymes, carbohydrates, proteins, lipids, vitamins and nucleic acids. Dear students, कि जितनी भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस जो हैं या बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं परफॉर्म हो रहे हैं, all are organic in nature, and without these chemical reactions our life is not possible. So this is the very much importance of organic chemistry in our daily life. The second thing is food which we eat is also mainly composed of organic compounds. अगर हम एग्जांपल्स देखें इसकी, प्रोटीन्स जो कि हमारी बॉडी का जो है वो एक लाजमी जुज़्व हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एक एसेंशियल एलिमेंट्स हैं. इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स हैं. सो these foods are mainly composed of organic compounds. And third one is organic compound are also present in medicine and cloths. मेडिसिन जो हम लेते हैं, उसके अलावा जो हम क्लॉथ्स जो है, कपड़े जो है वो पहनते हैं, इसमें भी जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो इन्वॉल्व है. फोर्थ वन इज मैनी अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स हैव बीन सिंथेसाइज्ड. डेली लाइफ, रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात हैं, हमारी जो अशियाए ज़रूरियात हैं, जो कि हम लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज भी करते हैं और ये नेचुरली अकरिंग भी होते हैं. प्लास्टिक है, सिंथेटिक रबड़ है, मेडिसिन्स, प्रिजर्वेटिव्स, पेंट्स, वार्निशेस, टेक्सटाइल फाइबर्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स, डाइज एट्सेट्रा. ऑल दीज synthesized products are the fruits of efforts of chemist. ये सारी की सारी जो है वो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट की एफर्ट्स का जो है वो फ्रूट हैं, जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं. ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स, इनको हम आर्टिफिशियली जो है वो लेबॉर्ट्री में भी सिंथेसाइज करते हैं. These synthetic compounds prevent the shortage of natural products. नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनका जितना यूज़ है हमारी डेली लाइफ में, अगर वो नेचुरली अकरिंग ना हो इतने ज़्यादा, तो फिर हम उनको लेबॉर्ट्री में जो है वो सिंथेसाइज करते हैं, जो कि हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज को जो है प्रिवेंट करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. शॉर्ट क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने इसको जो है वो देखना है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज 7.4, दैट इज सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हमने पढ़ा मॉडर्न डेफिनेशन. हमने ओल्ड कंसेप्ट जो पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली. बाद में मैंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. सो नाउ वी हैव टू डिस्कस द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो इनका फिर सोर्स क्या है? सो देयर आर 4 मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. Number 1, plants and animals, means living organisms. Number 2, coal. Number 3, natural gas. And number 4, petroleum. As we know, coal, natural gas and petroleum are called fossil fuels. So let's start from the
first source of organic compounds, that is plants and animals, means living organisms. The plants are the most important source of organic compounds. ये plants जो हैं ये most important source हैं organic compounds का. Second point देखिए, plants and animals provide many organic compounds, for example carbohydrates, vegetable oil, dyes and natural fibers. अब देखें, हमने अभी डिस्कस किया कि प्रोटीन्स जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हमारी फूड में जो है वो मौजूद होते हैं. इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, डाइस हैं. ये सारे के सारे हमें जो है, जैसे प्रोटीन के अगर हम एग्जांपल लें तो प्रोटीन जो है वो हमें चिकन जो है वो हमारा सोर्स है. ऐसे ही अगर हम मीट देख लें उससे हमें जो है वो प्रोटीन मिलता है, एग्स. तो ये आपके पास सोर्स जो है एनिमल जो है वो एक सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का. इसके अलावा प्लांट्स जो हैं उससे भी हमें जो है वो कई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो मिलते हैं. इसके अलावा ये तो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो जिंदा हैं, यानी जैसे एनिमल्स और प्लांट्स की हमने बात की. इसके अलावा जो डिकेइंग प्लांट्स होते हैं, जब ये डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, जब इनका डिके होता है, सो डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस. ये जो डेड प्लांट्स होते हैं या डेड एनिमल्स जो होते हैं, इनकी बॉडीज़ पे जब बैक्टीरियल केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बैक्टीरियल अटैक होता है जिससे इनकी केमिकल डिकम्पोजिशन होती है, डीके होता है, तो ये हमें इनसे पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस जो है ये मिलता है. और ये पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस जो हैं ये इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो our second source of organic compound is coal. What is coal? It is a solid mineral, usually a black color. ये आपके पास ब्लैक कलर में होता है और सॉलिड फॉर्म में होता है. अब ये कोल जो है, हमने भी पीछे पढ़ा कि डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं इनसे हमें कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो ऑब्टेन्ड होती है. तो ये कोल जो है ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स से कैसे बनता है, इसकी फॉर्मेशन की थ्योरी क्या है. It is believed that coal was formed by the decay of remains of trees. These trees were buried under earth 500 million years ago. देखें, जो डेड प्लांट्स होते हैं वो जब ज़मीन के नीचे जो है वो दफन हो जाते हैं, ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, उनके ऊपर बैक्टीरियल अटैक होता है, उनकी केमिकल उनके ऊपर रिएक्शंस होते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. ये जो डेड प्लांट्स की वुड होती है ये कन्वर्ट होती है किस चीज़ में, कोल में. कैसे कन्वर्ट होती है, देखिए, केमिकल एंड बैक्टीरियल एक्शंस कन्वर्टेड देम इनटू पीट. वुड जो है डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स की, इसमें ऑलमोस्ट 40% जो है वो नियर अबाउट 40% कार्बन जो है वो इसके अंदर मौजूद होती है. अब इसके ऊपर अगर आप नीचे डायग्राम देखें, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ. ये नीचे जो मैंने एक आपके पास ये डायग्राम शो की हुई, ये पूरी एरोस के साथ, इसको अगर आप देखें, वुड के ऊपर ये जो डेड प्लांट्स हैं कि ट्रीज़ हैं, ये डेड प्लांट्स एंड ट्रीज़ जो हैं, इसकी वुड के ऊपर बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शन जो होता है ये पीट में कन्वर्ट हो जाता है. पीट हमारे पास एक टाइप ऑफ कोल है जिसके अंदर 60% कार्बन जो है वो मौजूद होती है. ऐसे फिर पीट जो है वो फर्दर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की प्रेजेंस में लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाता है. लिग्नाइट भी एक टाइप ऑफ कोल है जिसमें 70% जो है वो कार्बन मौजूद होती है. ऐसे लिग्नाइट फिर हाई प्रेशर की वजह से बाइट्यूमिनस कोल में जिसमें 80% कार्बन जो है वो मौजूद होती है, एंड बाइट्यूमिनस कोल इज देन कन्वर्टेड इनटू एंथ्रासाइट, जो कि हमारे पास एक सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल है जिसमें 90% जो है वो कार्बन मौजूद होती है. तो ये हमारे पास एक थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन है कोल की, कि कोल जो है वो अंडर द अर्थ क्रस्ट जो है वो बनता कैसे है. अगर हम इसके यूजेस की बात करें, यूजेस ऑफ कोल, हमारे पास ये सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है, इसके साथ साथ इसके और यूजेस क्या हैं. इट इज़ अ सोर्स ऑफ फ्यूल, हम इसको एज अ फ्यूल भी जो है वो यूज़ करते हैं. इससे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कैसे ऑब्टेन्ड होते हैं, जब हम इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, जिसको हम कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल भी बोलते हैं. तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज कार्बोनाइजेशन या व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल
gives many organic compounds. कैसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते कैसे हैं? When coal is heated in the absence of air, it gives coal gas, coal tar and coke. ये अगर आप देखें, ये when coal is heated in the absence of air, it gives coal gas, ये सेकेंड कोल tar and coke. ये कोल गैस क्या है? इसमें लोअर हाइड्रोकार्बन होते हैं, मींस लो मॉलिक्यूलर मास वाले, और कोल टार और एंड कोक जो है, कोक है इसमें मेनली आपके पास कार्बन मौजूद होती है। थर्ड पॉइंट अगर आप देखें, कोल टार कंटेन्स मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो कोल टार के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये मोस्टली बच्चों एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक कौन से होते हैं ये आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ाए हैं, और नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो है वो कौन से होते हैं, या एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कौन से होते हैं। सो दीज कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये जो कोल टार के अंदर एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। फिर और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, सो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस करते हैं, जिसमें हम डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे डिफरेंट कंपाउंड्स को जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। लास्ट फोर्थ इज इट इज आल्सो यूज्ड इन पावर जनरेटिंग स्टेशंस। पावर जनरेटिंग प्लांट्स में या स्टेशंस पे इसको पावर जनरेट या एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी जो है वो इसको यूज़ किया जाता है। सो ये आपके पास इसमें जो इम्पोर्टेंट था कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और कार्बोनाइजेशन का, कि व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर इट गिव्स कोल गैस, कोल टार एंड कोक, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। या कार्बोनाइजेशन को सिंपली हम यूँ भी बोलते हैं कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कार्बोनाइजेशन के कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। सो ये आप कार्बोनाइजेशन जो है वो 10th क्लास में भी पढ़ के आए हुए हैं। सो ये हमारे पास थे यूजेस ऑफ कोल। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास कोल जो है वो एक सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, इसके यूजेस भी हमने डिस्कस किए कि इससे हम पावर जनरेट कर सकते हैं, इससे हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो यूज ऑब्टेन कर सकते हैं। सो पाकिस्तान में अगर हम कोल के रिजर्व्स जो हैं उसकी बात करें तो ये दिस इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू कि अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान टोटल कोल रिजर्व्स ऑफ पाकिस्तान इज अबाउट 184 बिलियन टन्स। टोटल जो कोल के रिजर्व्स हैं पाकिस्तान में वो 184 बिलियन टन्स के हैं। अबाउट 80% ऑफ दिस कोल, ये जो 184 बिलियन टन्स जो टोटल कोल के रिजर्व्स हैं पाकिस्तान में, इसका 80% जो है वो हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, इज़ यूज टू बेक ब्रिक्स इन लाइम किल्न, सम इज़ यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस। 80% जो है वो हम ईंटें पकाने यानी कि बेक ब्रिक्स इन लाइम किल्न में जो है वो हम ब्रिक्स को बेक करने में यूज़ करते हैं, और कुछ इसका यूज़ जो है वो हम डोमेस्टिक पर्पस पे भी करते हैं, जैसे कि आप घरों में अक्सर जो है वो कोयला यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज इंट्रोड्यूसिंग कोल इनटू इंडस्ट्री बाय मेकिंग कोल बेस्ड पावर प्लांट्स। गवर्नमेंट्स जो है वो एफर्ट्स कर रही हैं, ट्राई कर रही हैं कि कोल बेस्ड पावर प्लांट जो है वो लगाए जाएँ जिससे जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस की जाए। इसके अलावा लास्ट पॉइंट अगर आप देखें, सिंध कोल अथॉरिटी एंड द डायरेक्टरीज ऑफ मिनरल्स डेवलपमेंट ऑफ पंजाब, बलोचिस्तान एंड KPK आर ट्राइंग टू एक्सपेंड कोल यूज इन पावर जनरेशन। ये NWFP लिखा हुआ है, आपकी बुक में भी अभी तक जो है वो यही लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि अब आपको पता है कि हमारा जो 4th प्रोविंस है डेट इज़ KPK खैबर पख्तूनख्वा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो ट्राई कर रही है कि कोल के जो यूजेस हैं इसको एक्सपेंड करके पावर जनरेशन प्लांट्स लगाए जाएँ ताकि जिससे हम जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कोल। इसमें हमने डिस्कस किया कि कोल जो है वो एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कोल के यूजेस, और कोल के पाकिस्तान में जो है वो टोटल रिजर्व्स कितने हैं। सो अभी तक हमने 2 डिस्कस किए हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कोल एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आवर नेक्स्ट सोर्स इज नेचुरल गैस। व्हाट इज नेचुरल गैस? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। इसमें लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स मीन्स कि लो मॉलिक्यूलर मास वाले या ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो लो होते हैं, मीन्स इसमें 1 से लेके 4 कार्बन तक के जो है वो कंपाउंड्स मौजूद हो सकते हैं।
इट्स मेजर पोर्शन इज मीथेन। इसमें इसका जो मेजर पोर्शन है इसकी कंपोजिशन में वो मीथेन है, यानी 85% तक इसके अंदर मीथेन मौजूद होती है। उसके अलावा बाकी गैसेस जो हैं वो इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन इसके अंदर मौजूद हैं। मेन जो इसकी कंपोजिशन में मेजर पोर्शन है 85% तक इसके अंदर मीथेन होती है। इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये भी ऑर्गेनिक मैटर की, जैसे हम पीछे पढ़ रहे हैं डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये भी ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन से भी जो है वो प्रोड्यूस होती है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है यूजेस ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के यूजेस क्या हैं? देखिए आपने ऐसे पॉइंट्स में ही लिखने हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि अक्सर बोर्ड में जो है वो आ जाता है। इट इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन इन सीमेंट एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में ये जो है वो एज अ फ्यूल भी यूज़ होती है। देखें इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन जनरल इंडस्ट्री। मोस्टली ये नेचुरल गैस जो है वो हम एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे होते हैं, और घरों में भी हमारे जो है वो नेचुरल गैस जो हम यूज़ कर रहे हैं इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट natural gas, which is also a source of organic compounds. Our next source of organic compounds is petroleum. देखिए पेट्रोलियम जो है वो हमारे पास एक रॉक ऑयल है। ये बनता कैसे, इसकी अगर हम थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन की बात करें, इट इज थॉट दैट स्लो केमिकल एंड बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जो है वो रॉक्स के अंदर उसकी स्लो केमिकल एंड बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन होती है, जिससे वो रॉक्स के अंदर, मैंने जैसे आपको बताया, जो कि जिससे पेट्रोलियम जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसको हम ये रॉक ऑयल भी बोलते हैं। इसको हम रॉक्स से जो है वो ऑब्टेन करते हैं। तो ये जब हमारे पास हम इसको ऑब्टेन करते हैं तो ये हमारे पास क्रूड फॉर्म में होता है, जिसको फिर हम क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। रिफाइन करने के बाद हम इसको जो है वो फिर यूज़ करते हैं। सो रिफाइनिंग इन पाकिस्तान अगर हम बात करें, पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रॉक्स एज ब्लैकिश कलर लिक्विड कॉल्ड क्रूड ऑयल। ये हमारे पास इम्प्योर फॉर्म हम कह सकते हैं। जब हम रॉक्स से इसको ऑब्टेन करते हैं तो ये प्योर फॉर्म में नहीं होता, ये इम्प्योर फॉर्म में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल। इस क्रूड ऑयल को फिर हम रिफाइनरीज में लेके जाके इसको रिफाइन करते हैं। द क्रूड ऑयल इज रिफाइंड टू गेट डिफरेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शन। ये भी हमारे पास मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शंस होता है, मिक्सचर ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। इसको फिर हम रिफाइनरीज में जाके रिफाइन जब करते हैं तो इसकी डिफरेंट फ्रैक्शंस जो हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो इससे पहले कि हम इसके प्रोसेस की तरफ जाएं कि रिफाइनरीज में हम इसको कैसे रिफाइन करते हैं, पेट्रोलियम की जो डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं उनको कैसे सेपरेट करते हैं, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑयल रिफाइनरीज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कितनी ऑयल रिफाइनरीज हैं, कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं और उनकी कितनी कैपेसिटी है, ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी उनकी कितनी है। सो देयर आर 4 ऑयल रिफाइनरीज इन पाकिस्तान। फर्स्ट वन इज अटक ऑयल रिफाइनरी दैट इज लोकेटेड एट Morga near Rawalpindi. It has 1.25 million tons oil refining capacity. Second point अगर आप देखें, 2 oil refineries are located at Karachi. They have 2.13 million tons oil refining capacity. And fourth is Pak Arab Refinery that is located at Mahmood Court near Multan. So this is अबाउट ऑयल रिफाइनरीज इन पाकिस्तान के कितनी ऑयल रिफाइनरीज हैं, कहाँ कहाँ पे हैं और उनकी कितनी ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी है पड़ी। सो ये हमने थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन और ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान में। अब हम बात करते हैं कि ये जो पेट्रोलियम, ये जो क्रूड ऑयल है, इसके अंदर डिफरेंट फ्रैक्शंस जो होती हैं, डिफरेंट मैनी, जैसे मैंने आपको बताया बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये सोर्स है। इसमें कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं, बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सी फ्रैक्शंस का ये एक मिक्सचर होता है। तो उनको हम कैसे सेपरेट करते हैं? सो फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम आर सेपरेटेड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है, जैसे पीछे भी हमने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले, कि ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस की बेस पे हम इनको क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें, द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
देखिए अगर आप ज़रा बात को मेरी सुन लें थोड़ी देर के लिए, फिर हम दोबारा स्लाइड की तरफ आते हैं जो इसमें लिखा हुआ है। हमारा जो ये क्रूड ऑयल होता है इसको हम 400 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं। ये 400 डिग्री सेल्सियस तक जब हम इसको हीट करते हैं, ऐसे कंपोनेंट जिनका बॉइलिंग पॉइंट्स 400 डिग्री सेल्सियस की रेंज में आता है, वो सारे के सारे वेपराइज होके एक टावर की टॉप पे चले जाते हैं, सारे वेपर्स की फॉर्म में चले जाते हैं। अब हमें पता है जब हम वेपर्स को कूल करते हैं, कंडेंस करते हैं, तो वो दोबारा लिक्विड की फॉर्म में आते हैं। सो 400 तक हमने हीट किया, वो सारे के सारे टावर की टॉप पे चले गए, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एक हमारा होता है उसमें टॉप पे चले गए। फिर हम उसको स्लोली जो है वो कूल करते हैं, टेम्परेचर डाउन करते हैं। सपोज हमने उसको 400 से नीचे जब उसको कूल किया तो वो 375 तक आया या 350 तक आया। ऐसे इस रेंज में 350 तक अब जिनका बॉइलिंग पॉइंट था वो कंडेंस होकर लिक्विड की फॉर्म में आ जाएंगे, उनको हम सेपरेट कर लेंगे। बाकी अभी हमारे सारे वेपर्स की फॉर्म में। फिर हम टेम्परेचर थोड़ा और डाउन करेंगे, यानी इसको कूल करेंगे। सपोज हम 300 तक ले गए, 250 से 300 की रेंज में ले गए, तो इस रेंज में जितने थे जिनका बॉइलिंग पॉइंट था वो कूल होके कंडेंस होके लिक्विड की फॉर्म में आ जाएंगे, उनको हम सेपरेट कर लेंगे। ऐसे स्लोली ग्रेजुअली हम जो है वो इनको कूल डाउन करते जाएंगे और जो कंडेंस होकर लिक्विड की फॉर्म में आते रहेंगे उनको हम सेपरेट आउट करते रहेंगे। देखिए अगर आप इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम इट इज हीटेड टू अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस, द रिजल्टिंग वेपर्स आर देन पास्ड थ्रू अ कंडेंसर, जहां पे वो कंडेंसर में से जब गुजरते हैं तो कूल होते हैं, वेयर दे आर कंडेंस्ड मीन्स के कंडेंस होकर लिक्विड की फॉर्म में आ जाते हैं, एंड कलेक्टेड एज अ फ्रैक्शन। ये एक टेबल आपके पास गिवन है, टेबल 7.1 प्रिंसिपल फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉम पेट्रोलियम। सो ये हमारे पास अगर आप पहला कॉलम देखें तो फ्रैक्शंस के नेम गिवन है, दूसरे में उनके बॉइलिंग पॉइंट्स की रेंज गिवन है, तीसरे कॉलम में उनकी कंपोजिशन और लास्ट में उनके यूजेस गिवन हैं। तो इन 400 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने के बाद भी अगर कुछ हमारा जो है वो नीचे रेजिड्यू बच जाए तो फिर उसको हम रेजिड्यूअल ऑयल बोलते हैं, जिसको हम फिर उसमें से हम फ्रैक्शंस को सेपरेट करने के लिए 400 से अबव टेम्परेचर पे हीट करते हैं। सो ये अगर आप टेबल देखें तो इसमें डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम गिवन हैं, जो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से हम पेट्रोलियम से सेपरेट आउट कर लेते हैं। सो ये दिस इज़ ऑल अबाउट पेट्रोलियम एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। इसमें हमने ऑयल रिफाइनरीज पढ़ी पाकिस्तान में कितनी हैं, कहाँ कहाँ पे हैं और कितनी उनकी ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी है। ये बच्चों आपकी बुक से मैंने, जैसे कि प्रीवियस रूटीन है हमारी, आज हमने 4 पेजेस जो है आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो स्पीड को बढ़ा रहे हैं। आज हमने 4 पेजेस जो है वो डिस्कस किए हैं बुक से। ये इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद हमने 7.4 में सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोल को पढ़ा। ये नेक्स्ट पेज पे आप देखें कोल, और नीचे एक रिएक्शन गिवन है, एक आपके पास एक डायग्राम गिवन है एरो से, जिसको रिप्रेजेंट किया कि पहले वुड जो है वो डेड प्लांट्स एंड ट्रीज की पीट में कन्वर्ट होती है, फिर लिग्नाइट, बाइटुमिनस कोल एंड देन टू एंथ्रासाइड। उसके अलावा आगे ये 2 पेज हैं जिसमें हमने नेचुरल गैस के बारे में पढ़ा है, और फिर लास्ट पेज पे अगर आप देखें हमने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा है। तो ये आप लेक्चर को अच्छी तरह से सुन के अंडरस्टैंड करके फिर आप अपनी बुक से ये पेजेस जो है वो रीड करेंगे। और ये लास्ट एक 5th पेज से नीचे अगर आप देखें, ये लास्ट पेज के ये 5th पेज के थोड़े 2 लाइन्स जो है वो ऐड हो रही थी, जो मैंने नीचे ऐड कर दी हैं। तो बुक से बहरहाल आप इन टॉपिक्स को फिर अच्छी तरह से पढ़ेंगे। पहले आपने लेक्चर सुनना है, फिर आप बुक से पढ़ेंगे। इंशाल्लाह आपको टॉपिक जो है वो समझ आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप किसी भी टाइम जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं विद योर टीचर। देखिए बेटा, जैसे आपकी प्रीवियस रूटीन है, लेक्चर को अच्छी तरह से सुन के अंडरस्टैंड करने के बाद फिर आपने बुक से उसको रीड करना है। बुक से रीड जब आप कर लेंगे, आपको अगर कम्प्लीटली आपको लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया है तो फिर आपकी असाइनमेंट में मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो दिए हुए, आपने इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करनी है। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इन सारों के आंसर जो है वो पीछे डिटेल में मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर आप लेक्चर तवज्जो से सुनेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये क्वेश्चंस के आंसर जो है वो ईजीली आप अटेम्प्ट कर सकेंगे, इनको ईजीली आंसर कर सकेंगे। तो ये आपकी असाइनमेंट है, इसको आपने सॉल्व करना है। एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।